our life without control. If the thing, they also have to have the control on their process. If they will not have a control, then imagine what could be the output of the product, right? If so, we took a lot of examples. If the teacher is teaching in the class and the students are going to behave, if such students are going to do this, I mean, then what will happen to the students? Students, hello, you'll be welcomed in the class. Yes, sir. You'll be No, welcomed in the class. Very good. Okay, so you no, sir. start misbehaving, then I'll see what is to be done, sir. I mean, whether I'll be welcoming you or okay. So if I hope everybody is getting, if you go to any office, last time I was discussing about the license thing, go to the RTO office, they will have first if you are having a proper qualification, proper learning, proper so and so, then you can appear for the test. And if you are qualifying, if again, then you will be given the license, right? Right, my students? Yes, sir. Yes. So last time, Yes, sir. I also wrote one program based on switch case, and somebody was saying, sir, okay, just recollect the whole thing. Jara recap kar dena isko sab. Switch and if. So I wrote one program first. Take a number and convert it into months, and the same program I wrote with if. Let me go back to my if ka program. Open. Where is that if? Sir, you are not presenting. Okay, I will present. Don't worry. Now it's visible. Yes, sir. Yes, sir. I think where is it my program? Switch wala. See any switch. Switch to month. Oh yeah, here it is. We have seen this program here. I wanted to tell you here. I'm clearly audible today. There is no problem, right? Yes, Yes, sir. sir. Yeah. I mean to say, suppose here if I'll enter month as 5, say month as 5, so that M is 5, it will say switch to 5, switch to case 5. M is 5, so it won't see case 1, 2, 3, 4. It will directly switch to case 5, and it will print the required output as May and then break, right? If somebody will enter over their month as 10, then it won't see the first 9 cases. It will directly switch to case 10 and it will print the output as October and then break, stop, right? Break means come out of that switch. Don't see here and there. Now, if there won't be any break, then what will happen? Suppose मैंने क्या किया? मैंने break को block करके रखा है right now. Time being my breaks are blocked. Okay. Suppose 2-3 breaks are blocked. And then if I'm running this program, I'll enter the number 1. Then if there is no break, I said 1, so it won't stop at January. It will print in January. It will go into the Feb also because Jan print करने के बाद में आपने उसको बाहर नहीं किया, break नहीं किया. So just have a look. क्या क्या हो गया? Jan, Feb, March, right? अगर Jan में break होता था तो वो break बाहर आ जाता था. I mean the control will be out of the switch. अगर आपने सब जगह ब्रेक हटा दिया है, then it will print all the months. ऐसा. अगर मैंने अगस्त किया है, सपोज इन केस अगस्त किया है, मंथ इज अगस्त एंड देयर इज नो ब्रेक, सो अगस्त से आगे का सभी मंथ प्रिंट करेगा वो. जस्ट हैव अ लुक. इट विल गो टू अगस्त एंड इट विल प्रिंट ऑल. किधर गया बाबा? अगस्त ब्रेक है क्या? ओ क्या ब्रेक किया? ये ब्रेक नहीं करना है, मैंने स्टेटमेंट को ही ब्रेक कर दिया. ये ब्रेक करना है. जस्ट हैव अ लुक क्या ब्रेक करना है. सो नाउ आई विल से अगस्त. Month number is 8.
Just have a look at the output. But output आपको क्या चाहिए? What output you need? Hello. Single month. एक particular month से you don't require all this output, which is wrong, right? Yes, sir. हाँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर मंथ चाहिए, तो जरा हम लोग एक काम करते हैं, फिर ये ब्रेक करना पड़ेगा. दैट मीन्स अगस्त के बाद में आपने जो अगस्त को जो ब्रेक किया है, वेयर इज अगस्त? सो आई शुड रिमूव दिस वन, सो दैट मीन्स अगस्त में जाएगा इमीडिएटली, फिर बाहर आ जाएगा, राइट? इट वोंट गो टू द सितंबर एंड ऑल बिकॉज देयर इज अ ब्रेक स्टेटमेंट रिटन ओवर देयर. ठीक है, एवरी केस के बाद में ब्रेक होना चाहिए. जैसे कि मान लो आपकी मम्मी ने आपको बोला बेटा जस्ट गो एंड गेट दीज थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, तो आपको फोकस होना, स्विच होना चाहिए. आप इधर उधर 100 दुकान मत घूमो बाबा. जस्ट गो टू वन पर्टिकुलर शॉप एंड गेट योर प्रोडक्ट एंड कम बैक टू होम. डोंट सी हियर एंड देयर. बाकी बच्चे क्या करते रहते हैं, खुद का काम नहीं रहेगा, देन ऑल्सो दे विल बी रोमिंग हियर एंड देयर, यू नो, दे विल बी लुकिंग हियर एंड देयर. इट्स मतलब हम हर जगह देखने का ट्राई करते हैं. दे विल पीप इनटू द एवरीवेयर, which is not required. Switch means says go to that particular case, execute it, whatever is being told to you, come back. That's all. But if में क्या होगा स्टूडेंट, सेम प्रोग्राम अगर हम if में लिखेंगे, सेम प्रोग्राम which I have written there, तो अगर even though you have written suppose month is 9, लेकिन if क्या करेगा, it will start comparing from 1 because if does not have a brain. It will check whether the month is 1, no. Then it will check whether month is 2, no. Month is 3, no. Then so it will compare all the cases, and then when it will found is the month is 9, yes, then it will say print September. But switch में क्या होता है, you entered 9 or 10, it will go to that case directly September and it will print September. लेकिन if क्या करेगा, if will not print October directly, it will start comparing from 1, 2, 3, 4, 5. It will check all the cases, right? And then it will print that particular month when the match is found. Like आप घर में जहाँ बैठे हो, there is a electricity का board is there, and if some unknown person is there, if the switches are not being numbered or something, you know, and there may be so many switches are there, you are telling somebody to just start light number 12. What that person will be doing, वो if करेगा, वो बटन 1 को भी ऑन करेगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जब तक वो लाइट ऑन नहीं होगा तब तक सब कट 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 करते रहेगा. Better you number them and then you tell that person you start light number 12, so immediately that light 12 को button press करेगा and the light will be on. So which can do the process easier, in which one you can get the output in no time? मतलब किसमें, either if or switch, which can give the output in lesser time? switch आपको जल्दी काम करके देगा if आपको time consuming है. If will also do the job, but if will take time, switch takes less time because switch directly particular वो case में जाता है, execute करता है, done. But what if does? If searches, stay one by one, like where is that value is found? If the value is matching, then only it stop. Then also it won't stop. अगर आपने if में अगर number आपने डाल दिया 7, so if क्या करेगा, 1 से कंपेयर करते आएगा और 7 में जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर भी चुपचाप नहीं बैठेगा, काम हो गया है, फिर भी अगस्त में भी जाएगा, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर सब में जाते हुए एंड तक जाएगा. सो इफ डजंट स्टॉप. हमने लाइट का एग्जांपल जब लिया, बोर्ड का एग्जांपल लिया, वी ऑल ह्यूमन बीइंग, हम देखते रहते हैं, लाइट ऑन हो गया स्टॉप कर देंगे, लेकिन यहाँ इफ को तो कुछ दिखाई सुनाई नहीं पड़ता ना. सो इवन दो द लाइट इज ऑन, देयर आर 100 स्विचेस आर देयर इन द बोर्ड, इट विल कीप ऑन सब करता रहेगा, स्टार्ट से एंड तक करता रहेगा. स्विच क्या करेगा, switch will directly go to that case, will do the needful and come out. मतलब वहां 100 स्विच ऑन करना है, if तो सबको चेक करेगा, और स्विच क्या करेगा, एक को ऑन करके बस बात खत्म, डन. राइट स्टूडेंट्स? हेलो. Yes. I think switch is much better than if. But unfortunately, switch does not work with all data types. Switch works with only 2 data types. One is called integer, which you can see in this program. Next is called character. एक integer के लिए काम करता है और एक character के लिए काम करता है. But whereas if works with all data types. मतलब switch में I cannot write go to case 2.5, 3.5, 2.56. It doesn't work. Switch doesn't work with the float value. But if you can write if the value is greater than 19.85, then you do this. But switch does not work like this. Switch works only with case 1, 2, 3, 4 or case ABCD. That's all. Nothing else. Right? Switch does not. Switch works only with integers and characters. Somebody will ask you the difference. What is the difference between switch and if?
First, you can say that the if takes more time to execute to get the output, switch takes less time. That is one. Second difference, what you will be telling? If works with all data types, whereas switch works only with integers and Integer, characters. character. हाँ, चलो एक काम करते हैं, स्विच का जरा एक छोटा सा कैरेक्टर वाला भी एग्जांपल ले लेते हैं, सो दैट विल बी मच मोर क्लियर. एक चीज और याद रखो स्टूडेंट्स, कैरेक्टर मींस सिंगल कैरेक्टर, एंड इन प्रोग्रामिंग द कैरेक्टर्स आर रिटन इन सिंगल कोड्स. ऐसा कैरेक्टर्स आर रिटन इन सिंगल कोड्स, एंड सम वर्ड इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग. व्हाट इज स्ट्रिंग? इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स. अगर आपका एक से ज्यादा कैरेक्टर है, देन यू हैव टू राइट इन डबल कोड्स, एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रिंग. Group of characters is called string. One character is written, one character is written in single quotes, and then this, अरे क्या हो रहा है? हाँ, ये मेरा कैरेक्टर है और जो डबल कोट्स में है वो मेरा स्ट्रिंग है. स्ट्रिंग मींस ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, कैरेक्टर मींस सिंगल कैरेक्टर. इतना माइंड में रखो. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर्स? इज दैट क्लियर? आपका नाम क्या है? Yes, sir. आपका Sir, can you repeat once again, sir? व्हाट इज योर नेम सर? Kaif Ali, sir. कैफ अली. कैफ अली, आपका नाम जो कैफ अली इज वन कैरेक्टर और मल्टी कैरेक्टर नेम? Multi-character, sir. Multi characters are called as string. Group of characters are called string. Kaif Ali is not a just one character. It is Kaif Ali, 7 characters name, which is going to be string. But अगर आपको जेंडर बताना है, कहीं फॉर्म फिलअप करना है, एम और एफ, मेल और फीमेल, आप क्या स्टिक करोगे? मेल करोगे, फीमेल करोगे? कैफ अली, इतना टाइम लगता है सोचने को? Mail, sir. मैंने सर नोट डाउन करा सर. हाँ, तो M means वन कैरेक्टर. अगर मान लो आपने मेल बता दिया, भाई ये वन कैरेक्टर, राइट? So this is character. जैसे आपसे कोई आपका चॉइस पूछता है, हॉबीज पूछता है, yes no, that is all character वाला concept. But if somebody is asking your address, name, email ID, that all becomes string, group of characters. So let us take one example, very simple example, where I will be demonstrating that characters, switch with characters. So right now I'm taking maybe color kind of thing. Color एक वेरिएबल लिया मैंने, क्लियर स्क्रीन वाला है, क्लियर SCR, and then my program is just you enter the color code. अगर आप W बोलोगे तो मैं white बोलूंगा, Y बोलोगे तो yellow बोलूंगा, B बोलोगे तो black या blue, क्या बोलना है डिसाइड कर लो. बिकॉज B में 2 है, आपको B के लिए black करना है, BL नहीं चलेगा, बिकॉज स्विच वर्क्स ओनली विद कैरेक्टर्स. ओके, या B के लिए blue बोलना है. स्टूडेंट्स, एंटर. Blue. Blue. हाँ, because it will understand only one character. Enter color code. So I am reading your color code, whatever you are going to enter. Very important now, something new is coming up, which is called as %C. Now scanf is going to read C. C stands for character. It is not reading integer. It will be reading character. Now that character I will store it in color. Color code आप enter करने वाले, उसको आपका जो character है Y, W, green, जो भी है आपका, I am store it in color. I do not know what you have entered. I really do not know. But I will color में switch किया मैंने. Let me check the value. Let me check the value. Is that character what you have entered? I'm just checking. Case. आपने red दिया है क्या? अगर red दिया है तो कैसा भी red दे सकते हो आप, कैपिटल में दो या स्मॉल दो. मैंने आपकी दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर किया है. Either you enter in capital letters or in small letters, but my program will support. So मैं, आप छोटा R बोलो या कैपिटल, नहीं तो आप बोलोगे सर मैंने तो R दिया था फिर भी आपका प्रोग्राम नहीं चल रहा है. चला ना, आप छोटा R करो या बड़ा R करो, स्मॉल R, कैपिटल R, but my program will work. And then break. Next, अगर आपने येलो दिया है, कौन सा, कोई भी Y बोलो, any Y will work here. Just you have to include both, and then you can display this printf yellow. एक और एक दो केस चाहिए, जितना चाहिए लेटर ऑन यू कैन इंक्लूड, जस्ट कीप ऑन एडिंग, राइट? जैसे अभी ये कर रहे हैं वैसे ही यू कैन ऐड सम मोर केसेस, सिमिलर लाइन. And then I'm going with the printf. This is my green. And break. Like this you can, it's not only 3, you can enter as many as you want.
but I'm closing here because I just have to explain the concept. You have to understand this, like how switch works with the characters. So I have, let me save this program, then switch with C switch. That means ये character वाला switch है. IT. Hello, sir. बोलिए सर. It means it is not necessary to always write that default, sir. नहीं, डिफॉल्ट आप लिख दो ना. डिफॉल्ट लिखना है तो लिख दो. कोई मान लो XYZ डालेगा तो X से कोई कलर आता है क्या? Z से कोई कलर आता है क्या? नहीं. सो जस्ट हम एक मैसेज दे देते हैं. चलो वो भी आपका अच्छा बात है. मैं डिफॉल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे एंड देन एक मैसेज देता हूँ, बाबा एंटर प्रॉपर कलर कोड. भाई जो कैरेक्टर से कलर स्टार्ट होता है वही एंटर करो आप. मैं तो इतना मैसेज दे दिया आपको. डिफॉल्ट व्हाट? एंटर प्रॉपर कलर कोड. आप समझ जाना कि आपका कलर कोड फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, आप वो एंटर करो. आप बोलो के एंटर कर दिया, आप बोलोगे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा बाबा. whatever color names are there, you enter that code, then my program can give you the output. So let us run this program. ये कहाँ पे एरर हो गया? क्लियर स्क्रीन का स्पेलिंग गड़बड़ है क्या? यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक्स होएगा, प्रोग्राम विल नॉट वर्क. CLR SCR, देखो उल्टा पुल्टा हो गया. CSR हो गया. स्टूडेंट्स, टाइपिंग मिस्टेक. SCR. Now this will work. Even single character plus minus semicolon कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ होगा, you'll not be able to execute the program. So I'm running my program, and if I'm saying R, I should get red. I can see red, right? If I'm entering something else like maybe Y, तो yellow आ जाएगा. Yellow आ गया. Maybe G करेंगे तो you can get green. So now see, I'm going with a capital G. Right, either small g, capital G, anything you can enter, you'll get the same output. So I'm entering capital G, you can see green. Now next time I'll enter small g, then also you say green, right? Can you see the output? Yes, sir. Yes, that's the reason, because I made both the provisions, either small or capital, because students कुछ भी करेगा. स्टूडेंट से मैंने कैरेक्टर तो एंटर किया सर, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द आउटपुट. द प्रोग्राम को ट्रेंड किया है वैसा कि यूजर कैन एंटर एनीथिंग, यू जस्ट वेलकम यूजर. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैंने कुछ एक्स एंटर कर दिया तो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एंटर प्रॉपर कलर कोड, राइट? ये डिफॉल्ट हो गया कि आप अपार्ट फ्रॉम वट एवर कैरेक्टर्स यू हैव इंक्लूडेड, उसके अलावा आपने कुछ भी किया है, सो इट विल से डिफॉल्ट में जाएगा वो, एंड इट विल गाइड यू प्रॉपर्ली. ओके, आई होप वी पीपल आर गेटिंग एवरीथिंग, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So which is better, switch is better or if is better? Switch. Switch. Which is better? Switch is better. On what reason? Why you are saying it is better? Just don't say better. क्या advantage क्या है sir? It takes less time. That is one. Yes, Right? direct. हाँ, and it directly execute that particular case. It doesn't go with all the cases. Where if क्या करेगा कि हर एक if में आपने 100 if लिखा है तो 100 में जाएगा. If क्या करेगा? या if सब जगह कंपेयर करते हुए जाएगा. मतलब अच्छा बच्चा नहीं है, मार्केट में भेजा है तो मम्मी ने बोला 2 मिनट में लेके आओ, पूरा मार्केट ही घूम के आ रहा है. राइट कैफ अली? Yes, sir. हाँ, ऐसा तुम करते हो ना? No, sir. हाँ, ऐसा कब से तू, आई मीन आई केम टू नो दैट यू आर डूइंग ऑल सच थिंग्स. Sir, आप, हम लोग का खुद का दुकान है, sir. अरे खुद का दुकान नहीं, तुम्हारी दुकान में सब कुछ थोड़ी नहीं मिलता होगा, फिर भी मार्केट तो जाना पड़ता होगा ना. Yes, sir. तो फिर क्या करते हो? कुछ बोलेंगे तो सब कुछ लेके आओगे ना, फिर सब पूरा मार्केट Yes. घूम के आएंगे. फिर बोलते नहीं सर मैं अच्छा बच्चा हूँ. अच्छा नहीं है तुम. हाँ, मस्ती करता है भाई तुम. राइट कैफ अली? Yes, हाँ. sir. Yes, sir. चलो अब हम लोग एक प्रोग्राम लेते हैं. देखते हैं तुम लोग कितने लोग इसको समझ पाओगे. पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा एंड देन आई विल राइट द प्रोग्राम. शायद आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोग्राम होगा, लेकिन प्रोग्राम तुम समझ जाओगे क्या है करके. लेकिन मैं प्रोग्राम पहले बोलूंगा कितना बड़ा है तो तुम लोग डर जाओगे, इसलिए पहले मैं प्रोग्राम बताने का कोशिश कर रहा हूं. लेट मी स्टार्ट माय बोर्ड फर्स्ट.
So how many types of controls are there, students? There are 3 types of controls: if else, and switch case, right? Yes. Do we require control in our real life? कि नहीं चाहिए control? Yes, sir. मम्मी पापा का कंट्रोल नहीं चाहिए ऊपर, टीचर का कंट्रोल नहीं चाहिए, एल्डर्स का कंट्रोल नहीं चाहिए. You want free life? Yes. कौन कौन बोल रहा है यस फ्री लाइफ चाहिए बाबा? बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई, बोलते हैं सर फ्री लाइफ चाहिए, मुझे कोई कुछ बोलना नहीं चाहिए. राइट? हमको सोचना है तो सोने दो, हमको घूमना है तो घूमने दो, सोशल मीडिया में लाइफ खराब करना है तो खराब करने दो. राइट? किसने बोला बाबा यस? Who said yes? कैफ अली? Sir, I didn't say. And I came to know that you only said that, sir, you don't want control in life. You don't like control in your life, right? No, sir. You like controls, right? Yes, sir. अरे ऊपर से बोल रहा है, अंदर से नहीं अच्छा लगता है, राइट? मम्मी कुछ बोलेगी तो अच्छा नहीं लगता है, बाद में बोलेगा सर मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बस. यू सेड ना वंस दैट आई रिस्पेक्ट बस, राइट ना? Yes, sir. मतलब मुझे डर नहीं लगता है, रिस्पेक्ट से मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बस ऐसा बात किया तुमने मुझे, राइट? Sir, actually, mummy is. अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम बेटा, देन आई विल नॉट डिस्कस दिस सब्जेक्ट विथ यू. लेट अस गो अहेड. स्टूडेंट, सपोज मेरा प्रोग्राम है कन्वर्ट नंबर just wait into words. नंबर को वर्ड्स में कन्वर्ट करना है. मतलब अगर मैं 1 बोलूंगा तो आप मुझे 1 बताना, 2 बोलेंगे तो ऐसा वर्ड्स में प्रिंट करना. मैं 25 बोलूंगा तो यू से लाइक दिस 25 नंबर इनटू वर्ड्स. मैं 375 बोलूंगा तो यू से सर 375 लाइक दिस. मैं 1 2 3 4 बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? 1234, right? So how will you write Yes. how will you write this program, sir? How we can convert a number into words? And this kind of program is there everywhere in our real life. आपके पास घर में बिल आता है, when the bill comes, that amount is written in both in numbers as well as words, right? When you appear for some examination, they tell you write down in words also, right? Yes. Yes, sir. Whether it is light bill, phone bill, electric bill, any amount, any kind of deal, everywhere you can say that the number amount is written in both in words as well as numbers. But how do we convert a number into words? Let us pay attention. अगर मेरा नंबर है 1 2 3 4 तो मुझे क्या प्रिंट करना चाहिए इसको? 1234. But my point, students, how will you come to know कि यूजर ने क्या एंटर किया? User has got the flexibility. User can enter 5 6 7 8. Then how will you change your output? Because at every place, at unit place or 10th place or 100th place, at unit place, how many possibilities are there? At 9. unit place, how many possibilities are there? 9, sir. 10. 9. 10. 0 to 9. Unit place can take any number from 0 to 9. That is 10 possibility. Right? अगर किसी ने बोल दिया 5 6 7 0 तो आपने तो 9 बोल दिया. 9 मतलब 1 से 9 तक लिया है. 0 कौन देखेगा? Yes, sir. So there are 10 possibility at unit place. How many are there at 10th place? 100. अरे बाबा 10th 10, sir. 10, sir. कैफ अली क्या हो गया? 10th place में how many possibilities are there? बोलो. Sir, 10 possibilities. Again, I am asking the question, how many possibilities are there at the 10th place? बाकी सब बच्चों को ब्रेन नहीं है. 9. 9. सर yes. एक देखो ये क्या बात कर रहे 19 90 सर. हो? इधर से आया बाबा तुम लोग. Sir, 10, sir. देखो अगर सिंपल एग्जांपल 2 3 मैंने 0 5 किया तो ये नंबर को क्या प्रिंट करोगे आप? 2300. व्हेन आई लुक एट 0 आई एम नॉट फोकसिंग, आई एम नॉट पेइंग एन अटेंशन टू दिस 0, राइट? एंड देन Yes, sir. आई विल से 5. मैं यहाँ पे जब 0 होगा मैं इसको इग्नोर करूंगा.
अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, देन आई विल से whatever is the output. अगर वो 0 है तो आप क्या कर रहे हो? आर यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दैट 0? No, sir. No, sir. नो, No. आप क्या प्रिंट, कोई भी नंबर ले लो. आई एम टेकिंग 5809. आप क्या बोलोगे? 5809, राइट? Yes, Yes, sir. sir. आप वो 0 को कभी भी फोकस करो, टेक एनी नंबर एंड बताओ फिर. अगर वहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, दैट मीन्स इसका में 9 पॉसिबिलिटी आई विल कंसीडर, बट 0 पॉसिबिलिटी आई विल नॉट कंसीडर. बट यू आर गोइंग टू कंसीडर 0 ऑफ यूनिट प्लेस, राइट? Yes, sir. But you are not going to consider 0 of 10th place. So in the 10th place there are 9 possibilities. What about in the 100th place? How many possibilities are there? 9, sir. Again 9. Yes. Why? Because I may say 30445. So what is your answer here? 3045. 0 जैसे ही आप उसको भूल जाते हो, no value for that 0. 100. Okay, you not say 0 100. But 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, up to 9, anything you will say 100, 200, 300, 400, 500 and so on. 0 रहेगा तो what will you say? Ignore, sir. Ignore. Ignore. Yes. ऐसे 1000 place में at this place, how many possibilities you can have? Can you say 0,000? No, sir. No. So if it is 1 to 9, I will say something that is 1000 or 9000. But if it is 0, then 0 रहने दो ना. If somebody is entering 3 0 3 4 5, so यहाँ पे आप ये नहीं बोलोगे 0345. No, you will be saying 345 बस, right? Yes, sir. Yes, sir. So just make a note. आपके पास कितना केसेस है यूनिट प्लेस में? यूनिट प्लेस में सर मेरे पास 10 केसेस है. 100 प्लेस में आपके पास 9 है. 1000 प्लेस में आपके पास 9 है. सॉरी 10th प्लेस में 9, 100 प्लेस में 9 एंड 1000 प्लेस में 9, राइट स्टूडेंट्स? Yes, Yes. sir. अब Yes, प्रॉब्लम sir. अब प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि मेरा पास जो नंबर था 1 2 3 4, ये सबको अलग अलग करना है, इनको टुकड़े करने हैं, इनको ब्रेकअप करना है. बिकॉज दिस इज वन यूनिट है कि ये फ्रेंडशिप है, ज्वाइंट है, इंटीग्रेटेड एक नंबर है. इनको सबको अलग करो तभी तो आप बताओगे ना. देन ओनली चेक भाई यूनिट प्लेस में कौन है. अच्छा, वो दैट यूनिट प्लेस हाउ मेनी वैल्यूज इट कैन टेक. 10th प्लेस में कौन है? व्हाट इज द डिजिट एट द 10th प्लेस? व्हाट इज द डिजिट एट द 100 प्लेस? व्हाट इज द डिजिट एट द 1000 प्लेस? आप इनको अलग तो करो पहले. हाउ यू सेग्रीगेट 1 फ्रॉम 1000 प्लेस से अलग कैसे करोगे? 2 को कैसे अलग करोगे? 3 को कैसे अलग करेंगे? स्टूडेंट्स, इनको ब्रेक करो पहले. Yes. कैसे ब्रेक करेंगे हम लोग? बोलो जल्दी. 1000 plus 200. कब सुधरोगे तुम लोग? Switch case. कब सुधरोगे तुम लोग? हाँ, तुम लोग के पास ब्रेन है ही नहीं है. आई कैन अंडरस्टैंड नाउ. देयर इज नो ब्रेन इन दिस क्लास. आप वही चीज बता दो. मैंने वो एग्जाम्पल जो लिया था मंकी वाला, कि मंकी को 60 फीट का टावर को टच करना है, फिर भी आंसर नहीं आया था तुम्हारी क्लास में, राइट? तो ये वही बात है. मैंने सिमिलर स्टोरी बताई हुई है, बट स्टिल योर ब्रेन डजंट वर्क. सिमिलर स्टोरी एंड यू नो द आंसर, स्टिल यू आर सेइंग ये करो वो करो. हाँ स्टूडेंट्स, बताया है कि नहीं बताया? और अभी मैं बोलूंगा तो हाँ बोलोगे सर, यस यस यस, पता चल गया. डिवाइड करके जो नंबर हाँ जी, हाँ जी, somebody saying something. डिवाइड करके जो नंबर बचेगा उससे कोई हाँ, अगर मेरा नंबर है 1 2 3 4, तो इसका एक रिमाइंडर मैं नंबर परसेंट 10 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 4, राइट? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? Yes, sir. ये क्या मैंने डिस्कस नहीं किया था आपसे सम ऑफ डिजिट्स एंड रिवर्स ऑफ डिजिट्स में? Yes. किया था. देन फिर ये नंबर को रिड्यूस करो. नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10. नाउ द नंबर विल बी 123, राइट? यस सर. Yes, sir. Now I'll take the next remainder R2, next remainder, that is 10th place value by n percent 10. What is my n right now? 123. उसका percent 10 करेंगे तो आएगा 3, right? Correct? यस sir. सर. Yes, Then I'll go by again n is equal to n by 10. My n is right now 123. n by 10 करेंगे तो number आया 12. Yes.
अब मैं R3 थर्ड में 100 प्लेस वैल्यू मुझे चाहिए, तो आई विल से n% 10, व्हाट विल आई गेट? 2. 2. Then again I'll say n is equal to n by 10. The number what will I get? 12. 12 by 10 I'll get 1. Right? Yes. And then I'll say R4 is equal to n% 10. 1% 10. 0.1 remainder. So what will I get is 1. Right? Yes. तो अब आप देखो, अब आपके सब रिमाइंडर अलग अलग हो गए कि नहीं? आपका 4 अलग है, R1 के पास में है, 3 अलग है, R2 के पास में है, R3 के पास में 2 है, R4 के पास में 1 है। तो पहले किसके ऊपर फोकस करोगे? पहले R1 को देखोगे, R2 देखोगे, R3 या R4? R4. Yes, पहले मेरा फोकस होगा R4 because R4 is having my 1000 place value. So now this R4 students can take how many values? अभी यहाँ पे स्विच केस आएगा। R4 यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4, 5 and so on up to 9 हो सकता है, right? Then after R4 I will be concentrating towards my R3. Then R3 can have 1, 2, 3, 4 up to 9, right? Yes. Because Yes, R3 sir. can say 100, 200, 300, 400, 900. Very important, R2. R2 can take the values 1, 2, 3 up to 9. R2 can also take the values 1, 2, 3, 4, 5 up to 9, right? Yes. And R1 can take the values from 0 to 9, right? Yes. Yes. हाँ, चलो, let me write this much. और I will explain you one thing. जरा हम लोग देख लेते हैं, then we'll get an idea. कि अगर मेरा R2 1 है, R2 1 है, मतलब जैसे अभी तुमको एग्जाम्पल से ही देना पड़ेगा। नंबर मेरा है 5, 6, 1, 0। आपको क्या प्रिंट करना चाहिए? हेलो, Yes, sir. व्हाट यू आर सपोज टू प्रिंट? हेलो, Yes, sir. क्या प्रिंट करना चाहिए स्टूडेंट्स? व्हाट यू आर सपोज टू प्रिंट ओवर हियर? अरे प्लीज से समथिंग। If it is 5610, what will you print? 5610. चलो मैं और थोड़ा भी जाने दो, ये प्रोग्राम को ब्रेक करके रखो। आई कैन अंडरस्टैंड योर लेवल, आई हैव टू गो डाउन एंड थोड़े और प्रोग्राम में आपको कराता हूँ। देन आई कम बैक टू दिस। कीप दिस वट एवर आई डिड टिल नाउ माइंड में रखो। चलो मैं आपको थोड़ा इफ एल्स ले लेता हूँ। इफ एल्स आई एम टेकिंग इफ एल्स। यू एंटर योर परसेंटेज and we will see the class. So percentage can be the float. So I said float P. P will take the percentage. Clear screen, and then printf, enter percentage, and your class can be decided on this. Okay, then scanf, %f, ampersand P. Look at this, %f, I am reading a float value, okay? And then I do not know, I mean, what is your percentage? If P is greater or is equal to 75, right? If the value अगर आपका greater than 75 है तो आपको क्या बोलना चाहिए? A. Right? Right, my students? Yes. Yes, sir. If P is greater than or is equal to 60, and देखो यहाँ पे अभी जो मैंने greater or is equal to, that is relational operator, and is your logical operator, and less than 75 है। P अगर greater than 60 है और 75 से कम है, more than 60, less than 75, then I will say, sir, you are a first class वाला students. Your class is first class. So I will write printf first class. So either the same program can be, see, I'm writing now if, इसी को हम लोग if else में कर देंगे. If P is greater than
or is equal to 50 and P is less than 60, then what you'll be saying? Then sir, my percentage, what is the सर आप P का ब्रैकेट क्लोज नहीं किए सर. Second, sir. कर देंगे, ठीक है? Then P will be, then your class will be what? Second, right? Yes, sir. Second Yes, sir. class. And then if P is equal to 40, 40, 40, and P is less than 50, then printf pass class. If P is less than 40, then I'll say sir, क्या बोलना पड़ेगा? फेल. Fail. चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, फेल कर दो अब. फेल and get ch. तो ये if में भी है और सेम प्रोग्राम वी कैन कन्वर्ट इट इनटू क्लास, सॉरी if else में. तो आई एम सेइंग परसेंटेज डॉट सी हाँ, ब्रैकेट का कहीं तो मिसमैच है. ये देखो ब्रैकेट, परसेंटेज मैंने बोला 89, ये क्या कह रहा है? डिस्टिंक्शन, राइट? Yes. I will say 68.66. क्या कह रहा है? फर्स्ट क्लास, राइट? Yes. You enter any percentage. I said sir 57.89. Sir second class. Next, sir 45.67. Sir pass class, right? आ रहा है कि नहीं आउटपुट? Yes. Yes, sir. Then I am Yes, saying sir. 34. ये बोल रहा है fail, right? Yes. Yes, sir. This is if है, but the same program we can also write if else. If just change कर दिया, if else if. If first greater than 75 तो ये करो डिस्टिंक्शन. else if बाद में लास्ट में कुछ नहीं करना है. लास्ट वाले के लिए आपने सब चेक कर लिया है तो if लगाने का जरूरत नहीं है. यू जस्ट से else, because if it is not greater than 75, greater than 60, greater than 50 और 40, तो अब कुछ चेक करने के लिए बचा ही नहीं. else में गया फिर वो, राइट स्टूडेंट्स? Yes, sir. अगर if होता तो you'll have to check all the possible cases. else में क्या आ गया कि if you have checked other cases, then there is no need to check the default case. else हो गया. Let us run this program and check. मैंने बोला percentage is sir 23. ये देखो else में गया, right? fail हो गया, right? Students, Yes, sir. Yes, आप sir. आप अपने सब केस चेक कर लो, बाकी को else में कर दो डिफॉल्ट में. तो दिस इज इफ एल्स, छोटा सा प्रोग्राम है, राइट? वेरी सिंपल प्रोग्राम. Now, suppose I'll give you the number, students. How will you say whether the number is divisible by 4 or 6? कैसे मालूम पड़ेगा? Whether the number is divisible by 4 and 6 both. क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे प्रोग्राम बात कर रहे हैं. Question is, take a number and say whether the number is divisible by 4. क्या करना पड़ेगा? No idea, sir. इंटीजर एक नंबर लिया, चलो मैं मेरा प्रोग्राम लिख रहा हूं जो मैंने लिया था अभी थोड़ी देर पहले. एक मैंने नंबर लिया हुआ है, वो कन्वर्जन वाला, और नंबर आने के बाद में एक एक लाइन नहीं समझेगा तो मुझे पूछ लेना. नंबर
आई एम सेइंग एंटर इंटीजर, इंटीजर टू वर्ड का प्रोग्राम मैं टाइप कर रहा हूं अभी, एंटर एन इंटीजर। इतना तो समझ गया सबको, इतना भी डाउट? Yes. हाँ, इसके बाद में ये लाइन आएगा स्कैनएफ वाला, ये भी क्लियर है राइट? Yes. Yes, sir. के साथ में मुझे 4 वेरिएबल चाहिए जिनको मैं सेग्रीगेशन वाले स्टोर करना है आंसर। सो आई एम सेइंग R1, R2, R2, R3 एंड R4। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने R5, R6, R7 क्यों नहीं लिया है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो मेरा जब नंबर आ गया है तो सबसे पहले मैं काम करता हूं R1 में मैं मेरा यूनिट प्लेस को स्टोर कर लेता हूं। R1 विल हैव द यूनिट प्लेस। विल आई गेट द यूनिट प्लेस हियर, यस और नो? अभी करके दिखाया था ना, R1 में यूनिट प्लेस आ जाएगा राइट? Yes. स्टूडेंट्स, जैसे नंबर 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 4% 10 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा इसमें राइट? Yes. बाद में क्या किया मैंने, नंबर को रिड्यूस कर दिया, नंबर इज इक्वल टू नंबर बाई 10। तो अगर 1 2 3 4 था तो अब n में क्या आएगा, 123 आएगा राइट? Yes, Yes. sir. अब R2 में आई विल टेक द 10th प्लेस वैल्यू। तो नंबर इज राइट नाउ 1 2 3, आई विल से n%10%10, व्हाट विल आई गेट इज 3। इज इट करेक्ट? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now I am going ahead with n is equal to n by 10. What will I get is 12, I suppose, right? Yes. Yes. अब मुझे 2 को segregate करना है, so I'll say n% 2, n% 10. What will I get is 2. Is it correct? Yes. Yes, sir. Now I'm going ahead with n is equal to n by 10. What will I get is 1. 12 के बाद में 1 आएगा. Yes. And then R4 is equal to n% 10. What will I get is 1. Is it correct? Yes. Now Yes. all Yes, my sir. digits are segregated. मैंने एग्जाम्पल के साथ में segregate करके दिखाया था. The same thing I just wrote in a code, nothing else. Yes. Okay. Now I asked you the question, which one will you concentrate first? R4, R3, R2, R1. आपने सब ने बोला R4. पहले R4 को पकड़ो आप. 1000 बताओ पहले. मैंने R4 में गया. Now R4 can take how many values? 9 values you said, right? R4 can Yes, sir. take 9 values. तो मैंने Yes, 9 values के लिए मैं printf लिख रहा हूं. अगर 1 है तो उसको बोलेंगे हम लोग 1000 बोलो. 1000. 1 है तो 1000. ब्रेक करो. ब्रेक. और 2 है तो 2000, 3 है तो 3000 एंड सो ऑन. जस्ट हैव अ लुक. मेरा 1000 रेडी है. अब 2 रहेगा तो मुझे क्या करना चाहिए? 2 और यहां पे 2000. ये 3000. 3000. 3 है तो 3000. 4 है तो 4000. 4000. 5 है तो 5. जो भी वैल्यू होएगा 1000 प्लेस में डायरेक्टली वो स्विच केस में जंप करेगा. 9 है तो 9000 प्रिंट करके आगे जाएगा फिर वो. तो 6 है तो 6000 बताना. बिकॉज इट कैन टेक एनी वैल्यू. सो एज अ प्रोग्रामर हमें सब कुछ कंसीडर करना पड़ता है स्टूडेंट्स. यू कैन नॉट टेल द यूजर एंटर द नंबर. अरे नंबर बताओ देन आई गिव द आंसर. तो वो तो कोई भी बताएगा. प्रोग्राम ये रहता है कि आप कुछ भी नंबर दे दो, हमारा प्रोग्राम करके दे देगा. दैट इज व्हाट द प्रोग्रामिंग इज. आपको पहले से कुछ आइडिया नहीं रहता है, डायनेमिक प्रोग्राम करना रहता है. यूजर कैन गिव एनीथिंग. And the last one is 9. 9000 हो गया. के बाद में आप Hello, sir. हाँ बोलो सर.
सर आप ये टर्बो सील में कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं सर? ये तो क्वेश्चन देखो इधर ही सामने लिखा हुआ, आंसर भी तुम्हारे पास है, एडिट में गए, कॉपी कैसे करना है, कंट्रोल प्लस इंसर्ट प्रेस करोगे, कैसे करोगे, कंट्रोल प्लस इंसर्ट, तो मेरे पास कंट्रोल की और इंसर्ट की है, और बाद में पेस्ट करना है तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ठीक है, दिखाई पड़ रहा है ना स्टूडेंट्स, कंट्रोल इंसर्ट शिफ्ट Yes, sir. Yes, sir. इंसर्ट। तो अभी मेरा प्रोग्राम रेडी हो गया है, केस R2 वाला, अब मुझे सॉरी R4 वाला, अब मुझे पूरा केस कॉपी चाहिए, ये वाला, ये देखो पूरे 9 केसेस मैंने कॉपी कर लिए, राइट राइट ना स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. और मैंने Yes, sir. अब मैं फिर से वही केस को रिपीट कर रहा हूं, मैंने बोला शिफ्ट इंसर्ट, तो मेरे पास एक ऑलरेडी 9 तक लिखा हुआ है, अब यहां पे मैं 9 लिखने वाला हूं, किसके लिए, R3 के लिए, R3, लेकिन अब आप क्या बोलोगे, 1000 बोलोगे 100 बोलोगे, 100. 100, तो यहाँ पे 100 बोलो, 1000 सब हटा दो, बोलो 100 200 300, ठीक है, कितना इजी है कॉपी पेस्ट करने के बाद में, यू कैन राइट 100 100 then 100 100 600 700 800, और दूसरा है 900। How many lines we have written till now, students? Approximately 72 lines, 75 lines हमारा हो गया है। But is there is any problem in understanding these 75 lines? किसी को डाउट है अभी तक, बताइए। मैंने बोला प्रोग्राम बढ़ा जाएगा, लेकिन मैं आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। नाउ व्हाट कम्स इज स्टूडेंट्स, व्हाट कम्स इज नाउ, अब मेरा कौन स्टार्ट होगा, R2, राइट, हेलो, Yes. Yes, sir. somebody is asking something, पूछो, Sir, I do write that break. हाँ, somebody is asking something, am I audible, students? हाँ हाँ बेटा, you are asking something, please ask. Sir, why do we write that break? Why do we write break? ब्रेक नहीं लिखेंगे ना तो 1, अगर मान लो ये प्रोग्राम है, कुछ भी पहला ले लो, R4 का ले लो, तो अगर अगर हमने ब्रेक नहीं लिखा, केस 1 में आपने किया, मतलब 1000, तो इट विल प्रिंट 1000 2000 3000 4000 ऑल दी थाउजेंड्स। ब्रेक मतलब आपका काम हो गया, अब जो भी केस में गया, यू कम आउट ऑफ दैट स्विच, वो स्विच के बाद बाहर आ जाओ, आप ब्रेक करो, राइट, यू ओनली जस्ट डू दैट ओनली वन केस, और वो केस से बाहर लाने के लिए, दैट मीन्स टू टेक यू आउट ऑफ द स्विच, व्हाट डू वी राइट इज अ ब्रेक, वो स्विच से बाहर लाने के लिए आपको, जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने 6 किया और ब्रेक नहीं लिखा है, ब्रेक लिखा है तो क्या कर रहा है, 6 प्रिंट करने के बाद में, 6000 प्रिंट करने के बाद में आपको बाहर कर देता है, राइट, इट विल नॉट अलाउ यू टू गो टू 7 8 9 स्टूडेंट्स, हेलो, यस सर। हाँ, मतलब अपना Yes, sir. काम करो और बाहर निकलो, आप इधर मार्केट घूमने नहीं आए हो, ठीक है, आपको 7 बोला गया, आप 7 में जाओ, और 7 में जो भी करना है करके, यू डोंट रोम हियर एंड देयर, इधर उधर ताक झाक मत करो और बाहर जाओ सीधा, राइट स्टूडेंट्स, जैसे तुम लोग की आदत क्या है इधर उधर ताक झाक करने का, दैट इज नॉट अलाउड इन स्विच, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, आप एग्जाम में आओ, अपना काम करो और निकलो, ब्रेक, राइट स्टूडेंट्स, राइट, Yes, sir. यस, दैट इज व्हाई डू वी राइट आफ्टर दिस, ये वाले जो 9 केसेस है, ये भी सबको समझ गया है, लेट अस, आई हैव टू राइट नाउ विच केस नाउ, R2 की R1, बोलो, R2. R2, चलो, let us, so I'm copying these cases and I'm writing my R2 now, R2, R3 already लिखा हुआ है मेरा 100 वाला केस, R2, so R2 में अगर 1 रहेगा तो क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताना, आई रियली डू नॉट नो, यू हैव टू हेल्प मी आउट। 2 रहेगा तो आई नो व्हाट टू राइट, 2 रहेगा तो क्या लिखना है, मैं बोलूंगा 20, रहेगा तो 20, जैसे आएगा ना 5625, तो यू विल बी सेइंग 5625, राइट,
Yes, sir. रहेगा तो मैं बोलूंगा 30, 1 रहेगा तो मुझे बताना अभी आप, और 4 रहेगा तो मैं बोलूंगा 40, 5 रहेगा तो मैं बोल दूंगा 50, 57। सर 1 को इग्नोर कर देना। अच्छा, वेरी गुड। अगर मान लो 5 6 1 2 किसी ने बोल दिया तो क्या बोलोगे? 612। भाई 5 6 12 12 कैसे बोलोगे आप? वही तो बात है ना। क्या आपके प्रोग्राम में बग्स चाहिए क्या? अगर आप इग्नोर करोगे, कोई बोलेगा अरे बाबा ये प्रोग्राम में बग्स है। बग्स मतलब क्या? ये सब केसेस के लिए नहीं चलता है। 12 13 14 15 के लिए चलता ही नहीं है। मतलब अगर 10th प्लेस में 1 रहेगा तो ये प्रोग्राम फेल है। यू वांट यू एज अ प्रोग्रामर फेलियर चाहिए लाइफ में? तो फिर आपको हर चीज का सॉल्यूशन देना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने 8 9 90 तक मैंने कर दिया। 5 6 9 0 करो, 9 1 करो, 90 91 जो भी करना है आप, मैंने 90 तक कर दिया। लेट अस गो बैक टू मेरा केस 1 में जा रहे हैं हम लोग। केस 1 में गए स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन करो, विजुलाइज करो, अगर मेरा 10th प्लेस 1 है तो आई कैन नॉट से दैट 5610 बोला या 5611, सो आई कैन नॉट से 5610 एंड 1। अगर 5611 है तो यू हैव टू से 11 12 13 14, राइट? हेलो। Yes, sir. तो 12 13 14 बोलने के लिए आपको R1 देखना पड़ेगा कि R1 में क्या है। R2 तो 1 है, R1 में क्या है? R1 में 0 है तो मैं 10 बोलूंगा, R1 में 1 है तो मैं 11 बोलूंगा, R1 2 है तो मैं 12 बोलूंगा, राइट? यस और नो? यस सर। यस। तो जरा देख, मतलब यहाँ पे मुझे केस के अंदर में एक और केस लाना पड़ेगा, स्विच केस के अंदर में एक और केस लाना पड़ेगा। क्या बात किया सर? स्विच केस के अंदर केस, राइट? चलो हम देखो लेके चलते हैं, ठीक करेंगे इसको। अंदर केस होगा आपका, अगर मेरा R2 1 है तो मुझे 10 कब बोलूंगा स्टूडेंट्स? R2 1 है, जरा ध्यान देना अब मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पे। R2 1 है तो मैं एक और स्विच को कॉल कर रहा हूं, स्विच। मैं R1 में जा रहा हूं, R1 स्विच R1, और यहां पे अगर मेरा R1 0 है, R1 0 है तो मैं बोलूंगा, आप क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पे? 10। यस, प्रिंटफ 10, आप 10 आएगा, और ब्रेक। और मेरा अगर केस 1 है, मतलब अगर आपने R1 का 1 है तो आप क्या बोलोगे अभी? प्रिंटफ 11। यस 11। तो पहले वो R2 का 1 देखोगे, बाद में R1 का क्या है। सो देर आर हाउ मेनी केसेस ऑफ विथ R2 का 1? 10 केसेस ऑफ R1, राइट? 10 cases. Yes, sir. So let me write down those 10 cases. Break. सर Flow. स्विच का स्पेलिंग गलत है। इसका स्विच R1 के इधर। switch. Here now. What should I say now here? Printf 12 and then break. And let us, ये हमारे जो बचे हुए केसेस हैं, I'll go ahead with the case 3. 3 रहेगा तो I'll have to say 13, right? Yes, sir. 13 मैंने बोल दिया। 13 4 रहेगा तो I'll have to say what? 14. 14 I'll say. 14. If it is 5, I'll go at 15. Now there will not be any works, Mr. Kaif Ali. Yes, sir. Sir, I had a doubt, sir. अब बोलो डाउट बाद में, पहले प्रोग्राम लिखने दो बाबा। ओके, ऑपरेशन इज गोइंग ऑन, डोंट आस्क एनीथिंग ड्यूरिंग द ऑपरेशन, डॉक्टर विल बी इन ट्रबल देन। केस उल्टा हो जाएगा। वंस द केस ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, देन यू कैन आस्क मी एनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, आई एम रेडी टू आंसर। सो नाउ 15 हुआ, आई विल गो अहेड विद द 16।
17. So 6 के बाद में you have 7 with 17. Go ahead with the 18 now. 18. 8. 18. First is 19. So if case 2, R2 is 1 and R1 is 9, it will say 19. R2 is 1, R1 is 5, it will say 15. 19. And with this, I will wind up this. And then this is one case of R2. One case, just one case. R1 ka, R2 ka one case 1. If R2 is 1, then it is looking at the 10 cases of R1. Just have a look. Can you visualize this? दिखाई पड़ रहा है ये? Hello? Yes, sir. If R2 is 1, then I cannot decide my answer. I'll have to see all the values of R1. And then how many values R1 can have? There are 10 values. So I'm considering all 10 values and I'm giving my answer. But if it is not, R2 is not 1, it is other than 1. If it is 2, then I said straightforward 20, 30, 40, right? Yes, sir. Yes. Yes. Then still my journey is not yet over. I'll have to go ahead with R1 ka case separately. Why separately? Because it can happen that agar aapne bola hai 5, 6, 3, 5. So what is your answer? 5 it will get from R4, 5000. 6 it will get from R3, that is 600. And 3 you said, 3 it will go into the case 3 of R2, like yahan pe jayega. Right? 30 bolega. And 5 from where will I get 5? I'll have to write R1 likhna padega. Still R1 I have to write. This R1 will not work. I'll have to write R1. So I'm writing R1 once again separately because it can be 85, 95, whatever 5. So I went to R1 once again, and after this, I don't want this 0 wala case. So it can be 1 because somebody say that 5671. So it will say 71 or 82, any such kind of numbers. Just I'm considering all 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Then you have 9. Right? How many lines we have written till now? Okay. Get CH. First time we are writing such a big program. And I hope my students have understood little bit, right? Yes, sir. It's not a difficult program. It's very easy program. Once you know the logic, actually what we did, we took one number, we segregated the digits, and then we are focusing on all possibility, like R4 agar 1, R4, 1000 place, it can have 9 cases, R3, 9 cases, R2 में there is a case, R1 में, R2 में 1 रहेगा, तो then 10 cases of R1, and then the balance cases of R2, and then R1 separately. So let us save this program, save as integer to word का program है .c. Success, no problem. क्या बात किया sir? 1, 2, 3, 4. Answer, students. Are you getting the correct answer? Yes, sir. Yes, sir. This is what we want. I will change my number. I said 5, 6, 7, 8. 5678. But there is a bugs present in this program. I'll tell you where is the bugs. I'll show you that bugs. And then I will remove that bugs.
that bugs is present here. 3412. There is a bug. You can see the bug now. 3412. क्या कह रहा है ये? 3412.22. ये क्या कह रहा है? 20. Students? So, Yes, sir. Arey, it should say 12 and should stop. Why it is saying unnecessary 20 and then 2, right? Yes, sir. Yes. So there is a bug. I mean, again, I'll show you some more bugs. I'm showing you like maybe 4, 5, 1, 8. What is this, sir? I'm not getting 4,000 answer. तो आता है correct, but sir, unnecessary it is giving the some other output as well along with, right? Hello. Yes. Yes, sir. yes, sir. So to say 18 जब बोलता है, when it says 18, let us see 18 कहाँ पे बोलेगा ये? R2 के 1 में जाएगा, 8 मैच होएगा, 18 हो गया. उसके बाद में हम इसको बोलेंगे चुपचाप बैठो, not to disturb now, right? अगर आप R1 में गए via R2, then I will say 18 हो गया ना, 15 हो गया ना, then why you are going back to R1 once again? फिर आपको R1 में सेपरेट जाने की जरूरत है क्या? नहीं. तो बस उसको वहां पे ही उसको चुप करा दो, बिठा दो, बोलो बस बाहर जाओ. हम एग्जिट कराते हैं, एग्जिट यानी प्रोग्राम से बाहर करेंगे हम इसको. अब देखना, टेक द सिमिलर काइंड ऑफ नंबर. आई सेड 3417. ओह सॉरी, 3417. जरा आप आउटपुट देखो इसका 3417 का. क्या आया आंसर? हेलो. Correct. करेक्ट है. Yes, sir. Correct. क्या किया मैंने उसको वहां पे, मैंने उसको रोक दिया. आई स्टॉप्ड दैट पर्सन, नो कंट्रोल, नॉट टू सी R1 नाउ. वंस यू हैव ऑलरेडी सीन R1 ऑफ इनसाइड R2, बाद में सेपरेट R1 देखने का क्या जरूरत है, राइट? Yes, sir. बिकॉज दैट R1 हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड इनसाइड R2. तो 17 हो गया था इसकी वजह से, बिकॉज दैट R1 वाज विजिटेड ओवर देयर एंड वो बाद में स्टॉप नहीं कर रहे थे. इट वाज गोइंग सेपरेटली वंस अगेन. ओके स्टूडेंट्स, is that clear, students? Yes, sir. Yes, sir. I hope Yes, sir. you all have understood this program little bit. थोड़ा तो प्रोग्राम समझा होगा तुम लोग को, कि नहीं समझा? हाँ, समझा सर. समझा सर. वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं. तो लिख भी लिया होगा सबने कि नहीं लिखा है? यस सर. लिख के भी हो गया. वेरी गुड. नहीं सर, थोड़ा पुरानी बाकी. कैन यू सेंड इन द चैट बॉक्स? You want me to send it the chat box? Okay, I will do that. Yes sir. Right. Okay, I'm sending you the chat box right now. Who is this Mahendra ji? Guest, अभी तक guest में ही बैठा है बाबा. He doesn't get the entry. Chat box में क्या हो गया? हाँ. Program is in Turbo C. Ben में इंटीजर टू वर्ड करके एक प्रोग्राम है, INT, इंटीजर टू वर्ड, एंड डन. सो yes students, I gave you the program. Okay, I So, need doubt. हाँ बोलो. Yes, please ask. Thank you, sir. Let her ask the doubt. I definitely welcome your doubts. बोलो बेटा. Yes, जब आपने वो एग्जिट लिखने से पहले 3417 लिखा था, वहाँ पे 20 क्यों आया था? लाइक 2 तो था ही नहीं ना वहाँ पे. नहीं, आपने क्या किया था कि जो केस जब 9 एंड हुआ था वहां पे ब्रेक नहीं था. जब स्विच R1 एंड हो रहा था ना, बीच में कुछ ब्रेक नहीं था. केस 1 का ब्रेक नहीं था. कौन से केस का? आपके पहले केस का. यानी जब R2 स्टार्ट हुआ था तो केस 1 किया. केस 1 के बाद में हम डायरेक्ट R1 में एंटर हो गए थे. केस 1 का ब्रेक लिखा था क्या आपने? नहीं. हाँ, तो इसीलिए ब्रेक लिखा जाता है. तो ब्रेक नहीं था इसलिए R1 तो पूरा विजिट करके आ गया. बाद में वहां ब्रेक नहीं था तो R20 दूसरे के घर में भी चला गया वो. आपने समझ में आया कि नहीं? जब R2 का R1 स्टार्ट हुआ था तो R1 का जो केस 1 था वहां पे ब्रेक नहीं था. नेहा, यस सर. आप समझे मेरा आइडिया क्या मैंने बोला? कि वो ब्रेक नहीं था, इसके लिए वो R2 में चला गया और वो नहीं जाने के लिए आपने एग्जिट डाला.
हाँ, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ अब आगे मत जाओ कहीं, बस बहुत हो गया, 20 में भी मत जाओ, 30 में भी मत जाओ, और आगे R1 में भी मत जाना। मैंने बोला अब यहाँ से बाहर जाओ चुपचाप, थैंक यू, ऐसा मैंने बोला उसको, राइट? Yes, sir. एवरी केस हैज अ ब्रेक। हमने जब स्विच R2 में केस 1 लिखा था, वहां ब्रेक नहीं लिखा था जब पूरा केस खत्म हो रहा था, राइट? Yes, sir. यस, दैट्स द रीजन वहां पे वो 20 भी बता रहा था, और कुछ नहीं था, ठीक है? Okay, sir. यस, ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, चलो, थैंक यू। Bye, sir. How many are Thank you, connected sir. now? Thank you. Thank you, Please, sir. please do attend lectures, otherwise you'll find it very difficult later on. Okay? Today आज का जो Yes, बड़ा sir. प्रोग्राम हुआ है, बाद में फिर समझेगा नहीं कुछ भी. And this is all logical. If you'll get a program, you'll not be able to understand the program until someone explains you the program, right? Students, once somebody Yes, sir. explains the program, then it is very easy for us to understand. अगर ऐसे ही program देखेंगे, then they will not be able to make out कि क्या है, क्यों है. वो फिर चाइनीज लैंग्वेज जैसा लगेगा तुमको, जापानीज जैसा, ये क्या है बाबा, यहाँ पे क्यों ये लिखा है, ये क्यों लिखा है, राइट? अपूर्वा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपूर्वा लेफ्ट. ओके बेटा, थैंक यू. Thank you.